In this chapter, basically, starting from the first chapter, that is experimental chemistry. अच्छा, इसमें you will see volume of liquids. Like we have multiple units of volume, that is meter cube, and then you have decimeter cube, and then you have centimeter cube as well. Okay, so these are the units for volume. It's like we can measure the volume in these units. Sometimes centimeter cube, sometimes decimeter cube, sometimes meter cube as well. Okay, so and then these are the you can say apparatus by which we can measure the volume of liquids. It's conical flask, then we have beaker, then we have pipette, then we have burette, then we have measuring cylinder. तो ये वो सारी चीजें हैं कि जिससे हम वॉल्यूम मेजर कर रहे होते हैं. ओके, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी चलूंगा क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं. होपफुली यू नो दिस. और वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए वी generally used to this like this gas syringe up to 100 centimeter cube. Okay, and for temperature, you know that we generally use thermometer. We have two types of thermometer: mercury in glass and alcohol in glass. Okay, or temperature ka unit, you know, that is Kelvin or degree Celsius. No need to do this. Okay, no need to do this conversion. And of course, the unit for time is seconds, and we can measure the time through clock and digital stopwatch. Simple. It's very basic. And generally, we can measure the mass of solids. Okay, uh, in kilograms or grams, and also the tons, also in milligrams. So you will see mixed questions. Sometimes he would be giving you mass in kilograms. Sometimes he would be giving you the mass in grams. Okay, or then obviously you are supposed to convert milligrams into grams. Of course, if you are going to convert milligrams into grams, so you are supposed to divide this by 1,000. Okay, or sometime आप किलोग्राम से grams में आ रहे होंगे, so of course multiplied by 1,000. So this is the unit conversion, basic conversion है. तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए. Okay, अच्छा, then after doing this we have methods of purification. Like what is pure substance? Pure substance means that single substance, not mixed with anything else. Not mixed with anything else. Let's suppose distilled water. इसमें it's only water, nothing is mixed. तो ये pure substance है. और pure substance को how can you check? You know, its melting and boiling point would be fixed. Melting and boiling point would be fixed. Okay, like water का boiling point अगर 100 degree Celsius है, so it would be 100, not 101 and 102, not 99.9 degree Celsius, क्योंकि वो same होगा. Okay, uh, so that would be the pure substance. और बाकी जो mixture की अगर आप बात करते हो, so it contain two or more substances. Like we have sea water, it has water and the salt, dissolved salt. Milk is also an example of mixture. Okay, so what we have to do, we have to separate the substances. So we have multiple methods. जैसे कि we have filtration. अच्छा, filtration में हम क्या कर रहे होते हैं? We generally separate insoluble particles from the liquid. Like if you have sand and water, so this is the filter paper. जब आप उस वाटर को इस पे डालेंगे तो पानी तो नीचे से पास हो जाएगा, but you will see the sand particles over there. So this is called filtration. So remember, in filtration, we always separate insoluble particles. We always separate insoluble particles from the solution. That is called filtration. It's very easy. And what is crystallization and evaporation to dryness? You know, in these two methods, we separate the soluble salts. You know, we separate the soluble salts. Remember, we only separate the soluble salts. What is the difference between like filtration and crystallization? You know, only difference is that in filtration we generally separate the insoluble particle, और जो crystallization होता है इनमें हम क्या कर रहे होते हैं, we only separate the soluble salts. Okay, let's suppose अगर आपने water में dissolve कर दिया sodium chloride, that is the soluble salt. Then what would you see? तो soluble salt में क्या हो रहा होता है कि अब आप उसको फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते हो. क्यों? उसकी वजह ये है कि जब आप उसे फिल्टर करोगे तो वो तो सॉल्यूबल पार्टिकल्स हैं, वो भी फिल्टर से पास हो जाएगा. बात समझ आ रही है आपको? वो भी फिल्टर से पास हो जाएगा, फिल्टर पेपर से. तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कर रहे होते हैं.
दैट इज ऑल्सो नोन एज क्रिस्टलाइजेशन एंड ऑल्सो इवापोरेशन टू ड्राइनेस। अब इसमें आपको करना सिर्फ ये है, सबसे पहले आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। ओके, सॉल्वेंट में आपने अपना सॉलिड डाल दिया, अब आपने इसको गर्म करना है, हीट करोगे, इवेपोरेटिंग डिश है आपके पास। अब जैसे ही आप उसे हीट करोगे, द सॉल्यूशन इज हीटेड टू इवेपोरेट मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट टू टर्न द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टू ड्राइनेस, कंटिन्यू हीटिंग अंटिल द सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड। आपको आपका सॉल्ट मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके, अच्छा दूसरा अब आप क्या करोगे, दिस इज क्रिस्टलाइजेशन। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, दिस इज योर इवेपोरेटिंग डिश, आपने उसमें हीट किया उसे। ओके, एंड देन द हॉट सॉल्यूशन इज अलाउड टू कूल, the hot solution is allowed to cool, the solid appears as cool crystals। अब आप इसको क्या करोगे, the cold solution is poured off to obtain the crystals, the crystals may be dried by pressing them between the sheets of the filter paper। तो अब बेसिकली द थिंग इज के अब आप उसमें क्या करोगे कि दोनों में सेम काम हुआ है, दोनों में यू हैव सेपरेटेड द सॉल्ट, दोनों में यू हैव सेपरेटेड द सॉल्ट। ओके, आपने फिल्ट्रेशन में भी यही काम किया था, बट इन फिल्ट्रेशन यू हैड व्हाट, इनसॉल्युबल पार्टिकल, लेकिन यहाँ पर क्या है, सॉल्युबल पार्टिकल है। वहां पे आपने हीट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। दैट्स द दैट्स द डिफरेंस, दैट्स द डिफरेंस। अच्छा दूसरा ये कि वाई क्रिस्टलाइजेशन अकर, क्योंकि होता यह है कि solubility of most solute decrease as temperature decrease, when solution cools solution cannot hold more solute, so the extra solute separates as pure crystals, as pure crystals, that's it. Okay, and then what is sublimation? Sublimation means that when the solid changes into gas directly, let's suppose you have separation of a mixture of solids, which one of its sublimes, let's suppose उसमें हमारे पास एक एग्जांपल है आयोडीन की, you know iodine is getting sublime। okay, आयोडीन जो है वो sublime हो जाता है, like it directly changes from solid to gas, it's sublimation। so what is sublimation, if I ask, you will say from solid to gas directly। तो ये वो solids हैं, ये वो solids हैं, ये वो सॉलिड्स हैं जो डायरेक्टली जो है वो चेंज हो जाते हैं फ्रॉम सॉलिड टू गैस। इसकी बहुत ज्यादा डिटेल आपको मतलब जरूरी नहीं है कि पता हो, बट यू मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ सब्लिमेशन। ओके, एंड व्हाट इज सिंपल डिस्टिलेशन? बेसिकली सिंपल डिस्टिलेशन में होता यह है कि अब क्रिस्टलाइजेशन, इवेपोरेशन, ओके ये और सिंपल डिस्टिलेशन, ये सब एक जैसे टॉपिक्स हैं, ये सब एक जैसी बातें हैं। लेकिन सिंपल डिस्टिलेशन में आप क्या कर रहे होते हो, तो आपका सॉल्ट भी सेपरेट हो गया और आपने सॉल्वेंट को भी वेस्ट नहीं किया। बात समझो जरा, इवेपोरेशन में और क्रिस्टलाइजेशन में वेयर इज द वाटर, वाटर तो सारा इवेपोरेट हो गया था, आप देख रहे हो ना यहाँ पर वाटर तो सारा इवेपोरेट हो गया। लेकिन मैं अब ये चाह रहा हूं कि मेरे पास वाटर भी इवेपोरेट ना हो और और मेरा सॉल्यूट भी जो है, मेरा सॉल्ट भी जो है वो सेपरेट हो जाए। तो मुझे क्या करना चाहिए, आई हैव टू डू सिंपल डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, basically same apparatus, like we have round bottom flask, then we have thermometer, then we have condenser। ओके हमने इसको हीट किया, दिस इज योर सॉल्ट एंड वाटर। जब आपने इसको हीट किया तो वाटर इज गोइंग टू इवेपोरेट और फिर इट वुड पास थ्रू दिस यू कैन से कंडेंसर। ओके, अच्छा अब इसमें आपको फायदा क्या हुआ, इसमें आपको फायदा ये हुआ कि बेसिकली आपका जो सॉल्वेंट था वो इस तरह से इस फ्लास्क में आ गया। बाकी अगर आप ये पूछोगे कि ये प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है, इट्स रॉन्ग, दीज ऑल आर सेम, दीज ऑल आर सेम। बस द डिफरेंस इज दैट इन दिस प्रोसेस यू आर नॉट वेस्टिंग योर सॉल्वेंट, दैट्स द ओनली डिफरेंस। बाकी मैकेनिज्म, मैकेनिज्म इज द सेम, मैकेनिज्म इज द सेम। वाटर इन यहाँ है, वाटर आउट यहाँ है, so you must know के वाटर इन यहाँ क्यों है, वाटर आउट यहाँ क्यों है। बेसिकली होता ये है यहाँ पर के होता ये है यहाँ पर के वो ये भी पूछ लेता है कि वाटर इन अगर यहाँ होता, आउट यहाँ होता, सो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। अब बात ये है कि when water enters from the lower side,
So it's going against the gravity. It's going against the gravity. Against the gravity. Remember, it's going against the gravity. तो उसको टाइम लगेगा ना? Obviously बात है, it takes time. Obviously बात है, it takes time. It takes time. तो आहिस्ता 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 जब वो जाएगा, सो ये जो वॉल ऑफ द कंडेंसर है, इट वुड गेट कूलर. तो ड्यू टू दैट जब आपके पास हॉट वेपर्स आएंगे एंड इट वुड कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंडेंसर, तो वो suddenly it would convert from gas to liquid. So this is called condensation. So this is what the condenser does. That's the job of the condenser basically. Okay. So I'm repeating: evaporation, crystallization, simple distillation. In these three processes, we are doing the same thing, but the thing is that in evaporation or crystallization, you are wasting your solvent, but in simple distillation, you are not wasting your solvent. अब आपके पास सॉल्ट भी सेपरेट हो गया, सॉल्वेंट भी आपका जाया नहीं हुआ. आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये है इसका फायदा. सिंपल डिस्टिलेशन की बात कर रहा हूं मैं. ओके, चले जी, आते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर. व्हाट इज दिस? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, fractional distillation में we generally separate like the complex mixture. Like if you remember, we had crude oil. We had crude oil. Crude oil is a complex mixture of hydrocarbon ना. तो हमने करना ये है इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, आप क्रूड ऑयल को इसमें एंटर करोगे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में. ओके, अब जैसे ही आप इसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में एंटर करोगे तो होगा क्या? होगा क्या? ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स चीजें सेपरेट होनी शुरू हो जाएंगी. पेट्रोल अलग हो गया, डीजल अलग हो गया, पैराफिन अलग हो गए, केरोसिन ऑयल अलग हो गया, मीथेन गैस अलग हो गई. तो मतलब कि दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. मेरी बात समझ आ रही है आपको? सो वी ओनली सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू. और आपने वो पूरा कॉलम याद करना है. याद है ना आपको, जिसमें चीजें सेपरेट हो रही थी? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन. रिमेंबर, सी दिस. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन. सो ये पूरा जो कॉलम है, यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस. ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन. सी दिस. इसमें कि कौन सी चीज कहाँ सेपरेट हो रही है. समटाइम तो वो इसकी डायग्राम आपको दे देता है और मिस कर देता है, चीजों को मिसिंग कर देता है यहाँ पर. तो आपको यू हैव टू राइट इट डाउन. यू हैव टू राइट, यू मस्ट नो व्हाट इज दिस. और हर एक का यूज. सो मोस्टली वो कैरोसिन ऑयल का यूज पूछ रहा होता है, तो वी जनरली राइट इट इज यूज्ड इन जेट फ्यूल. मतलब मोस्टली वो इसका यूज पूछ रहा होता है. सिंपल सी बात है. ओके. अच्छा, फिर इस सेपरेशन टेक्निक्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी. अब क्रोमेटोग्राफी में हम क्या कर रहे होते हैं? इट्स अ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक. अब इसमें आपने करना क्या है, किस तरह से सेपरेट करते हो? आपने लेना है एक फिल्टर पेपर इस तरह का, पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है, और दिस इज द ओरिजिनल डाई. ओके, जो भी आपका सैंपल है, लेट्स सपोज आपके पास ब्लैक इंक है और आप उसमें से इंक को सेपरेट कर रहे हो, क्योंकि ब्लैक इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स ना. और colors can be separated on the basis of their solubility. अब एक कलर यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया. लेट्स सपोज ये रेड है, लेट्स सपोज ये ग्रीन है, लेट्स सपोज ये येलो है. तो आप समझ गए ना कि दिस sample had three colors that we have separated through this chromatography. Okay, so इस तरह से ये separation technique है. And why this is purification technique? अब आपने करना ये है कि I have given you the sample. I have given you the sample. Okay. अब I am asking, these are the dyes, comparison dyes. Let's suppose it's red, it's green, it's yellow. आपने सैंपल को भी रन किया और ये भी आपके पास है कंपोनेंट्स. आई एम आस्किंग कि क्या इस सैंपल में ग्रीन कलर है? क्या इसमें ग्रीन कलर? इट वुड मूव. इट वुड मूव फ्रॉम लोअर पार्ट टू द अपर पार्ट. अब ये यहां पर आके रुक गया, लेट्स सपोज ग्रीन कलर. अब बिल्कुल इसी की सीध में ये भी तो स्पॉट है. तो आप समझ जाओ कि ये जो ओरिजिनल डाई है, इट कंटेन्स ग्रीन कलर. क्यों? कि डिस्टेंस सेम आए. व्हाई? बिकॉज द डिस्टेंस इज सेम.
because the distance is same. जब distance same आएगा ना, so means that yes, this is present in your like sample. तो इस तरह से क्रोमेटोग्राफी एक प्योरिफिकेशन टेक्निक भी है. एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट RF वैल्यू? तो ये तो बड़ा इजी है. इसमें आपने करना क्या होता है, यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर RF वैल्यू ऑफ कोर्स. ओके, यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला. सो आपने करना क्या है, आपने करना सिर्फ ये है, distance of solute divided by the distance of solvent. Okay, अगर आप मुझसे पूछें कि सर मुझे इसके RF वैल्यू कैलकुलेट करना है, सो यू नो व्हाट आई वुड डू, यू नो व्हाट आई वुड डू, मैं स्केल लूंगा. इस तरह से मैं स्केल लूंगा, मैं बेस लाइन पे रखूंगा और मैं यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूंगा. बात समझ आ रही है? लेट्स सपोज ये डिस्टेंस आया मेरा 0.5 सेंटीमीटर. ओके, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं पूरा यहां से यहां तक, जिसको हम सॉल्वेंट फ्रंट कह रहे होते हैं, ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूंगा. यह है 3.5. सो 0.5 अपॉन 3.5 इज गोना गिव अस द RF वैल्यू. इस तरह से आप RF वैल्यू क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे. इस तरह से आप RF वैल्यू क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे. एंड इट्स वेरी इजी. एक करनी हो, दो करनी हो, तीन करनी हो, चार करनी हो, सो वट एवर RF वैल्यू यू आर गोइंग टू कैलकुलेट, इट्स वेरी इजी. इट्स अ बेबी टॉपिक. ओके, बहुत आसान है ये. अच्छा, RF वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपने. अच्छा, फिर वो आपसे पूछेगा what if we have colorless sample, what if we have colorless sample. तो फिर आप क्या बोलोगे, so we have to do a locating, we have to use a locating agent. भाई जब आपके पास कलरलेस सैंपल है, सो आपको तो नजर ही नहीं आ रहा होगा स्पॉट, तो आप उसकी RF वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? तो एट दैट टाइम वी आर सपोज टू यूज अ लोकेटिंग एजेंट. तो लोकेटिंग एजेंट में आपके पास आ जाते हैं ninhydrin spray. You would see in the marking scheme they have written ninhydrin spray. You would see ninhydrin spray. ओके, तो ये स्प्रे आप करोगे तो वो स्पॉट आपको विजिबल हो जाएगा. आप RF वैल्यू कैलकुलेट कर लेना. ओके, हो गया जी. चले आगे चलते हैं. फिर हमारे पास आता है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी. अच्छा, ये बिल्कुल बिल्कुल आसान थ्योरी है कि इसमें सॉलिड फिक्स वॉल्यूम, फिक्स शेप, इनकम्प्रेसिबल, डू नॉट फ्लो. लिक्विड फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स शेप है, फिक्स शेप नहीं होती इसकी, इनकम्प्रेसिबल है, फ्लो करता है इजीली. गैस के पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर होते हैं, लेकिन वॉल्यूम फिक्स नहीं होता गैस का, शेप फिक्स नहीं होती, कंप्रेसिबल होता है, फ्लो करता है हर डायरेक्शन में. तो इसमें असल में होता ये है कि आपको ना एक एक चीज एक्सप्लेन करनी है, किस टर्म में, in sense of कि मैं आपसे पूछूं why the solid is changing from, why the solid is changing into liquid, you have to explain it on the basis of kinetic particle theory. तो आप क्या बोलोगे उसमें, आप उसमें बोलोगे कि particles are colliding with each other and when we provided heat to that particle, so the kinetic energy was increased, and due to that kinetic energy के increase होने की वजह से they were colliding with each other in a more frequent manner. As a result of this they were uh, pushing each other. As a result of this pushing की वजह से they are far away from each other. Obvious सी बात है ना, जब वो जो है वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो एक दूसरे को धक्के देंगे, एक दूसरे को धक्के देंगे, वो पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे. सो हेंस आई कैन से दैट इट बिकम्स लिक्विड, इट बिकम्स लिक्विड. तो ये है एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी. एक एक चीज का यू मस्ट नो हाउ द लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, how the gas changes into liquid, how the solid changes into liquid, how the liquid changes into solid. तो मतलब बात वहीं आ जाएगी. सो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी से कि पार्टिकल कितना कोलाइड कर रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है. सो यू हैव टू लाइक relate each and everything, you have to relate each and everything each and everything through the kinetic particle theory. And this is very easy, and this is very easy. Okay, चले, what is diffusion? डिफ्यूजन का मतलब स्प्रेडिंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना. लेट्स सपोज इसमें मेरे पास गैस है, लोअर जार में मेरे पास गैस है, और मैंने उसके ऊपर एक खाली जार रख दिया. थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा,
ये particle will move from higher concentration to the lower concentration, and afterwards you will see that the color would remain same for both, क्योंकि ये diffuse हो गए एक दूसरे में. बात समझ आ रही है? This is called diffusion. Diffusion depends on multiple factors. We have temperature and molecular mass. Temperature is higher, so the diffusion is higher. Temperature is lower, so the diffusion is lower. मॉलिक्यूलर मास इज हायर सो द डिफ्यूजन इज लोअर. लेट्स सपोज मैं आपको देता हूं दो मॉलिक्यूल, एक मेरे पास है CO2, एक मेरे पास है O2. CO2 का मास 44 ग्राम, इसका मास 32 ग्राम. तो ये हैवियर है ना, इट वुड नॉट डिफ्यूज फास्टर बट इट वुड डिफ्यूज फास्टर. है ना, बिल्कुल सिंपल क्राइटेरिया है, बिल्कुल बेबी टॉपिक है ये. आगे चलें. तो ये डिटेल है कि किस तरह से सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, पार्टिकल की अरेंजमेंट कैसी है. नजर आ रहा है आपको? सॉलिड में पार्टिकल्स पैक टुगेदर, थोड़े से दूर दूर, बहुत दूर दूर. ओके, यू कैन कंप्रेस. जब आप उसको कंप्रेस करोगे पार्टिकल करीब करीब आएंगे एंड द टाइम वुड कम के द गैस वुड बी चेंजिंग इनटू लिक्विड एंड द लिक्विड वुड बी चेंजिंग इनटू द सॉलिड. Why they are going to compress? Because there is a distance between the particles. Due to that, they can be compressed. So the gas can change into liquid and the liquid can change into the solid. Okay. तो एक तो ये बात हो गई हमारी. Then this is called the heating curve. This is called the heating curve. First of all, it's going from solid to liquid and then liquid to gas. He would ask why this line is constant, is not changing, like it's not having any type of slope. It's not steeper. It's a straight line. Why this is so? Why the temperature is not going to change? You know why? When when the substance changes its state, the temperature doesn't change. Remember, this is very important. I'm repeating. When the substance changes its state, okay, so the temperature doesn't change. So the temperature doesn't change. That's important thing that you need to know. Okay हो गया जी. चलें. फिर आपके पास आता है कूलिंग कर्व. जाहिर सी बात है, जैसे हीटिंग कर्व है वैसा कूलिंग कर्व है. कूलिंग कर्व मींस यू आर गोइंग टू डिक्रीज द टेम्परेचर. तो वो पहले गैस था, गैस से फिर वो लिक्विड में आया, लिक्विड से फिर वो सॉलिड में आ गया. इट्स वेरी सिंपल. ओके. अच्छा, देन आइए जरा, व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन का मतलब लिक्विड टू गैस. है ना. और व्हाट इज बॉइलिंग? वो भी आप कहोगे सर ये भी लिक्विड टू गैस है. भाई तो फर्क क्या है दोनों में? बॉइलिंग इज फास्ट, इवेपोरेशन इज स्लो. ओके, बॉइलिंग इज फास्ट, इवेपोरेशन इज स्लो. बॉइलिंग occurs at higher temperature at any, evaporation occur at any temperature. Okay, boiling occurs throughout the liquid. Evaporation occur only on the surface of liquid. Remember, okay. What is condensation? Gas to liquid. The reverse of evaporation. The reverse of evaporation. The reverse of evaporation is condensation. Remember. और sublimation का तो मैं आपको बता चुका हूँ. Okay. अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट. इट्स मार्क्स गेनिंग चैप्टर. इसको ध्यान से देखना, लाजमी देखकर जाइएगा इसे. ओके, इंपॉर्टेंट में से है ये, याद रखिएगा मेरी बात, ये इंपॉर्टेंट में से है आपके पास. ओके, इंपॉर्टेंट में से है ये. ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो बड़ा आसान है, ये तो आई कैन डू, आंखें बंद करके कर लूंगा. बेटा असल में होता ही है, जो चीज आसान होती है ना तो आप बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है. बात समझ रहे हो मेरी? और वो गलत करके आ जाता है. तो थोड़ा सा टेक केयर इट. तो तो charge of electron -1, charge of proton +1, charge of neutron 0, relative mass of proton 1, relative mass of neutron 1, relative mass of electron 1/1836. Remember, you have to memorize this table. Okay, चलें आगे चलते हैं. Regarding the proton number, you must know the definition of proton number, the number of protons. What is nucleon number? It's the sum of proton and neutron.
ओके, या तो आप न्यूक्लियन नंबर कह लो, या तो फिर आप इसको मास नंबर कह लो। एक ही बात है, एक ही बात है। न्यूक्लियन नंबर इज इक्वल टू द मास नंबर, द सेम थिंग। ओके, चलें जी। व्हाट इज आइसोटोप? Having the same number of proton and different number of neutron. Simple, simple, simple. Okay. So what is electronic configuration? Arrangement of electrons in different shells. तो अब आप लिखोगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को? इट्स वेरी इजी। द थिंग इज दैट फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड शेल में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ में कितने होते हैं? 8। 2,8,8,8 and so on. You know, in our syllabus he would be asking only electronic configuration of the first 20 elements, not more than 20, remember. So let's suppose I'm asking chlorine is 17. What is electronic configuration? First shell contains 2 electrons, then 8, then 7. This is the configuration for chlorine. अच्छा, मजे की बात यह है कि whether you can draw this, whether you can write down this one. Okay, simple. Okay. So ये है electronic configuration, and you can find out the group number and the period number after writing electronic configuration. You know what is this? How many shells? 1, 2, 3. So the period number is 3. It's in the third period. How many electrons are there in the group? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Group number is 6 and the period number is 3. Okay, when you can go to the periodic table, you will see that it would present in group 6 and period 3. Okay, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इम्पोर्टेंस। इसको अगर आप रिलेट करवाओगे पीरियोडिक टेबल से, आई टोल्ड यू द टोटल नंबर ऑफ शेल्स आर गोइंग टू टेल यू द पीरियड नंबर, and the outer electrons are going to tell you the group number. Okay, so see this configuration: 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8,1, 2,8,2, like goes on. It's from 1 to 20. It's from 1 to 20. That's the thing that you have to do only. That's it. Okay, तो इसमें टेंशन नहीं लेनी आपने। चलें जी, आगे चलते हैं। फिर हम आते हैं, देन वी हैव एलिमेंट्स। व्हाट इज एलिमेंट? अच्छा, ये बिल्कुल बेबी टॉपिक्स हैं, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलूंगा। एलिमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज अ सिंपलर, लाइक दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वंस। ओके, बाकी atom है, molecule है, of course atom is the smallest unit, molecule is a group of 2 or more atoms chemically joined. Okay, compound क्या होता है? Compound is a substance containing 2 or more elements chemically joined together. Okay, अच्छा जी, what is the difference between compound and mixture? Compound की composition is fixed, mixture की composition fixed नहीं होती है, simple सी बात है। तो ये difference मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। After the class I would be sending you this document to you as well. Okay, so don't worry about that. Acha, now we are starting the main chemistry. Okay, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ज्यादा ज्यादा मार्क्स के, whether you are going to do MCQ portion, whether you are going to do theory portion. I'm talking to 5070 and 0620 both. So what is ionic bonding? Ionic bonding is the transfer of electron from metal to non-metal. जैसे कि this is sodium metal, it has 1 electron in its outer shell. This is chlorine, it has 7 electrons in its outer shell. Chlorine needs 1 more electron, so sodium will lose its 1 electron to this chlorine. So after losing, sodium would be having +1 charge and chlorine would be having -1 charge. After getting the charge, they would be attracting to each other and they would be forming an ionic compound. Simple. So what is the definition of ionic compound? Electrostatic force of attraction between the cation and anion. Electrostatic force of attraction between the cation and anion, like electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions. Simple, चाहे वो सोडियम क्लोराइड हो, मैग्नीशियम क्लोराइड हो,
मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, सोडियम ऑक्साइड हो, पोटेशियम ऑक्साइड हो, पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। लाइक मेटल और नॉन मेटल होना चाहिए। और दूसरा ये कि इनका एक और भी होता है कि इनके नाम के आखिर में ना यम और आइड आ रहा होता है। यम 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 और आइड, यम और आइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, कैल्शियम सल्फाइड। सो दे आर आयोनिक कंपाउंड्स और इसमें ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एंड यू नो दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, ये भी एग्जांपल मैंने देखा है पास पेपर में, काफी दफा पूछ चुका है, काफी दफा पूछ चुका है। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ड्रॉ करके जाना है आपने। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, you can take the screenshot, okay? It's very important. Like it can be calcium fluoride, it can be calcium chloride, it can be calcium like group 2 और group 7। क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लाइक थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसमें। जैसे मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। सो इस पे +2 का चार्ज आ गया। ईच फ्लोरीन इज गोइंग टू हैव -1 -1। दिस इज एन आयोनिक कंपाउंड। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके? अच्छा जी, फिर हम आते हैं इनकी प्रॉपर्टी पर। देखो ये सॉलिड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाई दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, आप बोलोगे भाई इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, जायंट आयोनिक लैटिस स्ट्रक्चर। A lot of cations and anions are joined together with a very strong force of attraction. So that's the reason they are going to have high melting and boiling point. Okay, they are bad conductor of electricity in solid state. क्यों? क्योंकि ions are not free to move. They are held together with a very strong attraction. How they can move from one place to another place? They are bad conductor in solid state, but they are good conductor in molten state, or good conductor in aqueous state because they are soluble in water. Why they are good conductor in molten or aqueous? You will say, sir, ions are free to move. That's the reason. अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं electrons are free to move. Wrong. They are wrong. Not electrons. Ions are free to move. Remember, ions are free to move. बार बार कह रहा हूं मैं आपको, ions are free to move. Okay? अच्छा जी, आगे चलते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग में, कोवेलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, ऑब्वियस सी बात है। सो इफ यू आस्क द डेफिनेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यू नो व्हाट आई वुड से? Again, electrostatic force of attraction, but not between the oppositely charged ions. No, electrostatic force of attraction between the nucleus and shared pair of electron. अब आप बोलोगे सर बात समझ नहीं आई आपकी, मुझे पता है मैं फिर क्या करूंगा। ये देखो जरा, दिस इज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर व्हाट? हाइड्रोजन। ऑब्वियसली आपको पता होगी ये डायग्राम। दिस इज एच एंड दिस इज एच, ये इसका इलेक्ट्रॉन और ये इसका। थोड़ी साफ बना दो। ये देखो जरा, ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये इस हाइड्रोजन का। सो दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस। तो मेरे भाई, न्यूक्लियस और इसकी जो अट्रैक्शन है, दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो मैं क्या कह रहा हूं, क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड between the nucleus and shared pair of electron, and shared pair of electron, that's called covalent bond, that's called covalent। और डॉट एंड क्रॉस डायग्राम तो आपको बनानी आनी चाहिए भाई, ये मैं बता दूं आपको। ये भी है, ये भी है, ये भी है, फिर CO2 भी है, फिर O2 भी है, फिर अमोनिया भी है, तो CH4 भी है, C2H6 भी है, मेथनॉल भी है। ओके, दीज आर इंपॉर्टेंट डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स। Sometime you will see single bond, sometime you will see the double bond, sometime you will see the triple covalent bond. Remember, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो वो कैसे पता लगेगा? वो आपको बताएगा ग्रुप नंबर। अब आप बोलोगे सर समझ नहीं आई ये बात, तो ग्रुप नंबर से कैसे पता लगेगा मुझे फिर? है, तो मैं आपको बताता हूं कि लेट्स सपोज आई डोंट नो व्हाट्स द टाइप ऑफ बॉन्ड इन नाइट्रोजन, यू नो हाउ कैन आई आइडेंटिफाई? सी दिस, मैं आपसे पूछता हूं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर शेल ऑफ नाइट्रोजन, आई वुड से, you would say sir 5 electrons। okay, 1 2 3 4 5। then I would ask कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए?
कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? आप बोलेंगे सर 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए। बात समझ आ रही है? सर 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको शेल कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेगा, एक और नाइट्रोजन आएगा इसके साथ, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, कैसे करेगा देखिएगा जरा। ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गया और फिर ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। कौन सा बॉन्ड बना? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो भाई मेरे, ग्रुप नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप नंबर पता लग गया तो टाइप ऑफ बॉन्ड पता लग गया, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। जैसे ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन is in group 6, how many outer electron? 6 electrons. How many more needed? You will say 2 electrons. Oxygen is going to make double covalent bond. Oxygen is going to make double double covalent bond. ओके, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है आइडेंटिफाई करना, क्योंकि अक्सर हम सुन रहे होते हैं सर क्या आपको कैसे पता लगा सर ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है? तो ये कोई बड़ी बात है क्या? कोई मसला नहीं है। मैं अगर आपसे पूछूं क्लोरीन सिंगल बनाएगा, डबल बनाएगा, ट्रिपल बनाएगा, ओके, आपको पता है कैसे सोचना है? आपको सोचना है अच्छा यार क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओ मतलब एक और चाहिए, ओके मतलब सिंगल बॉन्ड बनाएगा। हाँ तो ये है। देखो इसमें दो रास्ते हैं आपके पास, या तो आप चीजें याद कर लो या आप उस टाइम आइडेंटिफाई कर लो। अब आप बोलोगे सर इतना सारा कैसे याद करूं? इतना सारा नहीं है, इतना सारा नहीं है जो नोट्स में है, दैट्स मोर देन इनफ, ट्रस्ट मी दैट्स मोर देन इनफ। ओके, चलें आगे चलते हैं। फिर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड के स्ट्रक्चर हैं, जायन कोवेलेंट भी है। फिर आपके पास जायन में 3 स्ट्रक्चर है, डायमंड है, सिलिका है, ग्राफाइट है। डायमंड, ये बने हुए स्ट्रक्चर, ये डायमंड का है, ये सिलिका का है, ये ग्राफाइट का है। ये ग्राफाइट लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये सिलिका का है विच इज मेड ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, और ये डायमंड है विच इज मेड ऑफ कार्बन, और ये ग्राफाइट भी विच इज मेड ऑफ कार्बन। प्रॉपर्टीज आपको पता है, टेट्राहेड्रल होता है डायमंड, ग्राफाइट ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर। दोनों के मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, दोनों जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर हैं, और दोनों जो है वो मेड ऑफ कार्बन है। ओके, बट डायमंड इज हार्ड एंड ग्राफाइट इज सॉफ्ट, यू नो ग्राफाइट इज सॉफ्ट। ओके, तो why diamond is a bad conductor? There is no free electron, obvious सी बात है यार। Why graphite is good conductor? Obviously graphite has free electron, that's the reason. Okay, good। अच्छा, high melting point क्यों है? Giant structure, a lot of covalent bonds are there, a lot of covalent bonds are there, more energy would be required, that's the reason। high melting point, high boiling point। okay, चलें जी। फिर हमारे पास, अच्छा आपको पता है सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है ना, इसके अलावा, इसके अलावा कोई भी अगर कोवेलेंट होगा ना, चलो मैं आपके साथ एक टेस्ट करता हूं। मैं आपसे पूछूं HCl, HCl इज अ कोवेलेंट और आयोनिक? आप बोलोगे कोवेलेंट है ना यार, ऑब्वियस सी बात है, दोनों नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल, कोवेलेंट है। अच्छा कोवेलेंट है, स्ट्रक्चर कैसा है, जायंट है या सिंपल है? सर सिंपल है, कैसे पता लगा? लेट्स सपोज मैं आपकी जगह हूं, कैसे पता लगा? भाई सर ने कहा था कि देखो जायंट 3 ही होते हैं, इसके अलावा जो भी होगा सिंपल होगा। मतलब कल पेपर है तो मैं थोड़ा सा चीजों को जुगाड़ में लेके आ रहा हूँ, बात समझ रहे हो मेरी? चलें जी आगे चलते हैं। फिर अच्छा, जो सिंपल मॉलिक्यूलर होता है ना बेटा, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ये याद रखना मेरी बात। पता है क्यों? उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक होती है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वीकर, सो लेस एनर्जी वुड बी नीडेड टू मेल्ट और बॉयल। इट्स वेरी सिंपल, है ना? चले मेटालिक बॉन्डिंग पे आते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग क्या थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन थी बिटवीन द कैटायन एंड अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, वो मेटालिक बॉन्डिंग थी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर होते हैं, मैलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। उसकी वजह क्या है कि उनका लेयर्ड स्ट्रक्चर है, लेयर्स कैन स्लिप ओवर ईच अदर, तो वो मैलिएबल भी हो जाते हैं, डक्टाइल भी हो जाते हैं। गुड कंडक्टर इसलिए हैं क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। मतलब मेक सेंस, मतलब मेक सेंस। ओके, अच्छा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कल पेपर है, और अज्यूम क्या है भी कल पेपर, और आपको सारी चीजें पता है, एंड इट्स जस्ट क्विक रिवीजन, इट्स जस्ट अ क्विक रिवीजन। ओके, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ओके, तो मैं हर चीज को बहुत डिटेल में नहीं लेकर जाऊंगा। ये हो गया, केमिकल बॉन्डिंग की बात हो गई। अच्छा अगर आप मुझसे मोल का पूछोगे ना बेटा, मोल का, तो मोल में आपको 4 बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? मास ओवर mr, वॉल्यूम ओवर 24 डेसीमीटर क्यूब,
concentration times volume, and number of particles divided by 6.02 multiplied by 10 raised to the power 23. देखो ये चार फॉर्मूले जिसने अपने पास लिख लिए उसको मोल में टेंशन नहीं होगी, until और unless he or she knows के how to use that formula, then आपको कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। ओके अच्छा, तो मोल का बेटा सिर्फ प्रैक्टिस करवाते हैं, सो नथिंग, देयर इज नो थ्योरी। ओके, तो आई एम गोइंग टू स्किप दिस। ओके, आगे चलते हैं हम। अच्छा, फिर हम आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस पे। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस इज वन ऑफ द टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंट, इज वन ऑफ द टॉपिक। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ अ कंपाउंड बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? ये आयोनिक कंपाउंड होता है व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? दे आर अ रॉड और अ मेटल प्लेट which is a good conductor of electricity। एनोड पे पॉजिटिव होता है और कैथोड पे नेगेटिव होता है। हम करते ये हैं, अगर आपने किसी भी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया तो वो क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा? वो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी एनोड बन जाएगा। और अगर आपने उस रॉड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया तो वो कैथोड बन जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है। अच्छा, अब आपने इसमें तीन केसेस देखने हैं, एक मोल्टन का केस है, एक डाइल्यूट एक्वियस का केस है, और एक कॉन्सेंट्रेटेड का केस है। मैं तीनों आपको बता देता हूं, मैं तीनों आपको बता देता हूं। ओके, सबसे पहले हम आते हैं, सबसे पहले हम आते हैं किस पर? मोल्टन पर। अच्छा, मोल्टन का केस बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मोल्टन का केस बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेट्स सपोज ये मैंने आपको दिया मोल्टन लेड ब्रोमाइड, दैट इज PbBr2। अब आपने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, ये ब्रेक डाउन हो गया इनटू द पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस Pb2 प्लस और 2Br माइनस। आप देख सकते हो यहाँ पर। अब Pb2 प्लस पे पॉजिटिव है ना, इट वुड मूव टुवर्ड्स कैथोड। कैथोड पे जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन लेगा, Pb बन जाएगा। Br माइनस नेगेटिव है ना, एनोड पे जाएगा, बिकॉज एनोड इज पॉजिटिव। एनोड पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Br2 बन जाएगा। है ना, कितना सिंपल है ना, बस यही बात है। तो देखो, मोल्टन मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है? डाइल्यूट एक्वियस और कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस। मुश्किल मोल्टन नहीं होता। मोल्टन में तो कोई लड़ाई है ही नहीं, जो है वो चला जाएगा। कैथोड पे नेगेटिव, कैथोड नेगेटिव है ना, उसमें पॉजिटिव चला जाएगा, और एनोड पॉजिटिव है, उसमें नेगेटिव चला जाएगा। तो इसमें इतना मसला नहीं है। मसला आएगा आपको एक्वियस सॉल्यूशंस में। देखो, एक्वियस का मतलब क्या होता है कि उसको हमने पानी में डिसॉल्व किया हुआ है। अब तो कैथोड पे जाने के लिए दो लोग खड़े हैं, अब एक बंदा नहीं है। अब तुम्हें डिसाइड करना है रेस कौन जीतेगा, बात समझ रहे हो मेरी? तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको डिसाइड करके देगी। ये कैट आयंस की रिएक्टिविटी सीरीज है और ये एन आयंस की है। तो हर एक का अपना अपना इसका वो नेमोनिक होता है, जैसे खाला, नसीमा का, मंगेतर, अली। यहाँ पे निकले वैसे जिंक भी होता है, जैन, पप्पू हैदराबाद से कॉपर और सिल्वर लाया। मतलब हर एक का नेमोनिक है। मतलब ओके, मतलब जैसा आपको सूट करे, मतलब नहीं है। काला, नसीमा का, मोनिक से तो एक मंगेतर, पर्सन है। अली, जैन, पप्पू हैदराबाद से कॉपर और सिल्वर लाया। ये एन आयन की रिएक्टिविटी सीरीज है। ओके, जो कम रिएक्टिव होता है वो जाता है, जो कम रिएक्टिव होता है वो जाता है। अब मैं आपको समझाता हूं, देखो जरा। हमारे पास एक्वियस के दो केसेस आएंगे, एक कॉन्सेंट्रेटेड आएगा, एक आपके पास डाइल्यूट आएगा। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब पानी कम है, सॉल्ट ज्यादा है। डाइल्यूट का मतलब पानी ज्यादा है, सॉल्ट कम है। क्या कहा मैंने? कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिमेंबर। कल मुझे मैसेज करके बताना तुम लोग क्या आया नहीं आया। कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स more salt, less water, and dilute means more water, less salt। तो भाई आइए जरा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, लाइक सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब पता है क्या है? NaCl ज्यादा है, NaCl ज्यादा है, और पानी कम है, पानी कम है। तो क्या करूं सर, अब क्या करूं? तो देखेंगे जरा, कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा। देखो, एनोड पे जाने के लिए दो लोग तैयार खड़े हैं, एक है Cl माइनस, एक है OH माइनस। चूंकि कॉन्सेंट्रेटेड है तो मोर क्लोराइड होगा। क्लोराइड इज कमिंग फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, तो क्लोरीन जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन बन जाएगा। और कैथोड पे खड़े हुए हैं दो लोग, एक H प्लस और एक Na प्लस। अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज Na प्लस नीचे आता है, ऊपर आता है। देखो, ऊपर वाले नहीं जाते, ऊपर वाले मोर रिएक्टिव हैं, लेस रिएक्टिव जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, H प्लस जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा।
सिंपल सी बात है। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड का केस है। आपने देखा क्या फर्क है कॉन्सेंट्रेटेड में और डाइल्यूट में? अगर यही केस डाइल्यूट का होता ना, पता है मैं क्या करता? पता है मैं क्या करता? मैं Cl माइनस को थोड़ी भेजता, मैं OH माइनस को भेजता। पता है क्यों? डाइल्यूट का मतलब पानी ज्यादा है, तो OH माइनस कहाँ से आ रहा है? पानी से आ रहा है ना। तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि बेटा आप ये इक्वेशन याद कर लो, और होपफुली आपको याद भी होगी ये। होपफुली आपको याद भी होगी। यहाँ टू नहीं आता, यहाँ आता है। होपफुली आपको ये याद भी होगी। OH माइनस की इक्वेशन याद कर लो। ओके, तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड। तो कॉन्सेंट्रेटेड में ऐसा नहीं है कि तुम मुझे बोलो सर H प्लस की जगह Na प्लस चला जाएगा, ऐसा नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूटेड का जो इफेक्ट आता है वो एनोड पे आता है, कैथोड पे एज सच नहीं आता है। तो कैथोड को आप चेंज नहीं करना, एनोड को चेंज कर देना। जैसे ये कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड है ना, तो मैंने कहा क्लोराइड जा रहा है, और अगर ये डाइल्यूटेड होता तो मैं क्या कहता? वाटर का OH माइनस चला जाता। तो मतलब ये है। ओके, अब सर तो H2SO4। कैथोड पे रिएक्टिविटी की वजह से और एनोड पे कंसंट्रेशन। एग्जैक्टली, गुड, गुड, गुड पॉइंट, यस। H2SO4 में, H2SO4 में H प्लस विल गो, H प्लस विल गो, H प्लस विल गो, एंड एनोड पे जाने, कैथोड पे जाने के लिए, कैथोड पे, लाइक कैथोड तो डिसाइडेड है, एनोड पे जाने के लिए यू हैव टू पीपल्स, OH माइनस, SO4 2 minus. That is not in our syllabus. That is not in our syllabus. No need to worry about that. Do not think about that. It's a waste of time. Only OH minus will go. तो क्या कहा था? इक्वेशन याद कर लेना। बार 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 आएगी, बार बार आएगी, बार बार आएगी। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, याद कर लेना। ओके, तो OH माइनस जाएगा भाई, H2SO4 हो तब भी, HNO3 हो तब भी, HCl हो तब भी। OH माइनस से दोस्ती लगा लो, बहुत जाता है ये, बहुत जाता है ये। ओके, तो SO4 हमारे सिलेबस का पार्ट है ही नहीं, तो उसको भूल जाओ आप। आगे चलते हैं। फिर इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास आती है कॉपर सल्फेट की, बहुत फेमस इलेक्ट्रोलिसिस है। आई थिंक सो कि ज्यादा चांसेस हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट आए, लेकिन कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ। ये दो इलेक्ट्रोलिसिस आती हैं, एक कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ आती है और एक ग्रेफाइट के साथ आती है। बात को समझो जरा, एक नॉर्मल ग्रेफाइट के साथ इलेक्ट्रोलिसिस आती है, और एक इलेक्ट्रोलिसिस कॉपर इलेक्ट्रोड की वजह से आती है। तो मैं दोनों आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, दोनों में है क्या? सबसे पहले मैं आपको ग्रेफाइट वाली बता देता हूँ। अच्छा, ये तो आपको पता है ना यार कि सल्फेट नहीं जाएगा, ये तो आपको पता है ना कि सल्फेट नहीं जाता। भले वो कॉपर सल्फेट हो, यानी कि भले वो CuSO4 हो या वो H2SO4 हो, सल्फेट दोनों केसेस में नहीं जाता। ये तो अपने पास तुम पता होना चाहिए तुम्हें। तो अब ये तो डिसाइडेड है ना कि OH माइनस जाएगा, इसमें तो तुम्हें कोई शक नहीं है, OH माइनस ही जाएगा, OH माइनस ही जाएगा। ओके, OH माइनस जाएगा, SO4 नहीं जाएगा। सही हो गया जी। अच्छा, अब हमें करना यह है कि कॉपर और हाइड्रोजन में डिसाइड करना है कि कौन जाएगा। बात समझ रहे हो मेरी? तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर तुम जाकर देखोगे ना बेटा, तो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर नीचे आ रहा है, तो कॉपर जाता है, हाइड्रोजन नहीं जाता। क्या कहा मैंने? कॉपर जाता है, हाइड्रोजन नहीं जाता। ओके, एक मिनट देना जरा मुझे। अच्छा जी, तो ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोलिसिस होने लगी है अब ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोलिसिस होने लगी है। ओके, तो जब ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोलिसिस होती है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इज इनर्ट। क्या कहा मैंने? इनर्ट। इनर्ट बोले तो अनरिएक्टिव, इनर्ट बोले तो अनरिएक्टिव। तो ये ऐसे ही है जैसे तुमने चाय में चीनी डाली, चम्मच से उसको डिसॉल्व डिसॉल्व कर दिया। अब चम्मच शुड बी इनर्ट। पता लगा कि तुमने चम्मच जो है ना वो डेयरी मिल्क का ले लिया, तो चाय में चीनी डिसॉल्व होने के साथ साथ चम्मच भी डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो आज यही काम हो रहा है। ग्रेफाइट सिर्फ सरफेस यूज हो रही है उसकी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उस पर आके हो रही है।
तो एनोड पे ये चला गया और कैथोड पे कौन आ गया? कॉपर आ गया। हाइड्रोजन नहीं आया, यही समझाने की बात है। हाइड्रोजन नहीं आया, कॉपर आया है। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? सॉल्यूशन फेड्स। क्या कलर था कॉपर सल्फेट का? ब्लू कलर था। किसकी वजह से था? कॉपर की वजह से था। कॉपर कहाँ चला गया? कैथोड पे चला गया। तो सॉल्यूशन का कलर फेड हो गया, हल्का हो गया। ओके, and what I observe on anode, I would see bubbles due to the formation of oxygen gas. Simple. Okay. अच्छा, अब मैं आ रहा हूं किस इलेक्ट्रोलिसिस पर, जिसमें जो इलेक्ट्रोड्स हैं इज मेड ऑफ कॉपर, नॉट ग्राफाइट। नॉट ग्राफाइट, दे आर मेड ऑफ कॉपर। ओके। तो अब मैं चाय में चीनी ऐसी चम्मच से डिसॉल्व कर रहा हूं कि चम्मच इज मेड ऑफ डेयरी मिल्क। तो चीनी तो डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन चम्मच भी रिएक्शन में टेक पार्ट कर लेगी। चम्मच भी रिएक्शन में टेक पार्ट कर लेगी। सो इस दोनों में कैथोड इज मेड ऑफ कॉपर, एनोड इज मेड ऑफ कॉपर। फर्क सिर्फ इतना है, एनोड इज मेड ऑफ इम्प्योर कॉपर, कैथोड इज मेड ऑफ प्योर कॉपर। तो पता है क्या होता है? जो एनोड है ना, एनोड देख रहे हो, साइज ऑफ एनोड डिक्रीज हो रहा है और साइज ऑफ कैथोड इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? एनोड से कॉपर निकल निकल के जा रहा है। देख रहे हो आप? देख रहे हो आप? कॉपर सॉलिड, कॉपर 2+ बन गया आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा कहाँ हो रहा है? एनोड पे। आप बोलोगे ऐसा क्यों हो रहा है? पहले वाली इलेक्ट्रोलिसिस में तो ना भाई, पहले वाली इलेक्ट्रोलिसिस में ग्रेफाइट था इलेक्ट्रोड, अब कॉपर है। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन ग्रेफाइट। तो कॉपर बोलेगा तू क्या आ रहा है, मैं खुद ही इलेक्ट्रॉन लूज कर देता हूँ। आई एम मोर रिएक्टिव देन यू। ओके, लाइक चम्मच, like the spoon is made of the dairy milk, and that is the soft, and it melts at higher temperature. तो वो बोलेगा शुगर को कि भाई तुम तो बहुत बाद में डिसॉल्व हो गए, आई एम मोर देन यू, आई एम गोइंग टू मेल्ट। ओके, द सेम गोज ओवर देयर कि कॉपर ने खुद ही इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, which is an electrode, तभी तो साइज छोटा हो गया इसका। Okay, but sir, copper is not positive, so why did it go to the anode? No, basically it's not going to anode, it's going to cathode. See this, the size of cathode increases. It's not going No, to I'm anode. saying in the equation, it also like copper was also over there. No, no, no. Basically, the thing is that at anode, this is your anode. Copper is more reactive, is going to lose electron. Okay, electron is on this one. Okay, electron. So copper 2+ is going to the solution. Copper 2+ is going to the solution in the form of 2+ or leaving behind electron. Because initially it was just like that. Initially it was just like that. बिल्कुल smooth था। तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, कॉपर 2+ बन गया, कॉपर 2+ सॉल्यूशन में आ गया। अब सॉल्यूशन में आके करेगा क्या? ऑब्वियसली इट वुड सी दैट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और वो जाके वहां पर डिपॉजिट हो जाएगा, एंड इट वुड अगेन टेक 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम कॉपर 0, कॉपर सॉलिड। तो कॉपर सॉलिड आके डिपॉजिट हो गया। जस्ट लाइक दैट यू विल सी द साइज ऑफ कैथोड इज गोइंग टू इंक्रीज। So what's going on? What's going on? It's coming from anode to cathode. It's coming from anode to cathode, anode to cathode, anode to cathode. अगर मैं आपसे पूछूं what would you observe? Any color change in the solution? You will say no, there is no change in color. आप पूछोगे क्यों? क्या 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 कॉपर 2+ सॉल्यूशन से कम हो रहा है? नहीं हो रहा ना। ये तो जस्ट यहाँ से, ये तो जस्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ। सॉल्यूशन वाला कॉपर तो अपनी जगह ही है। देखो इस सॉल्यूशन में मैंने पता है क्या लिया हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट, कॉपर सल्फेट। अब आप बोलोगे सर इसका क्या काम है? जब ये चेंज ही नहीं हो रहा, ये कॉपर यहाँ से निकल ही नहीं रहा, ये तो जस्ट एनोड से कैथोड पे जा रहा है। सो व्हाई डिड यू टेक दिस कॉपर सल्फेट एज एन इलेक्ट्रोलाइट? अगर ये आप इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेते, हाउ द आयंस वुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस? दैट्स द job of electrolyte. It helps in traveling of ions and it can conduct electricity. That's why I have taken. It's my compulsion. I have to take it. But the thing is that copper is not changing from that solution. That's why the color will not change. But in the electrolysis of graphite, the color was changing. It fades. But in this electrolysis, it's not going to change. It would remain the same. That is blue. It would remain the same. That is blue. It's बिल्कुल सिंपल सी बात है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है। ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोलिसिस में कलर फेड्स, कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस में कलर डजंट चेंज। ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोलिसिस में no, nothing change in the size of cathode and anode, but copper की electrolysis में
Size of anode decreases, size of cathode increases. Okay, so that's all for electrolysis. अच्छा जी, आइए जरा, अच्छा इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में वी जनरली कोट द मेटल ऑन टू द surface of another metal. Let's suppose I have a spoon and I have to coat that spoon with the nickel. I have to do nickel plating. तो spoon should be made of cathode. Its spoon should have a negative charge क्योंकि इस पर मेटल डिपॉजिट होगा, तो मेटल मेटल इज अ पॉजिटिव, तो वो नेगेटिव के पास जाएगा ना। तो इस तरह से ये दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसमें पॉइंट वाली बात क्या है कि आपका जो जिस चीज पे आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, लाइक इट्स योर स्पून, इट्स योर की चेन, इट्स योर एनीथिंग एल्स, इट्स योर प्लेट, इट्स योर एनी सॉर्ट ऑफ मटेरियल, एनी सॉर्ट ऑफ योर ज्वेलरी, तो आपने जिसको भी कोट करना है इट मस्ट हैव अ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मेटल इज पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव के पास ही आता है। दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। व्हाई डू वी डू इलेक्ट्रोप्लेटिंग? To increase the shelf life of metal. Metal becomes shiny, it becomes beautiful. Okay. Or it is resistant to corrosion after electroplating, कि आपने उसको prevent कर लिया from corrosion. That's the good point, of course. Okay. अच्छा जी, फिर हम क्या करते हैं? फिर हम क्या कर रहे होते हैं? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। देखो, एक्सोथर्मिक क्या होता है? वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। और एंडोथर्मिक क्या है? जिसमें एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है ना। एंडो और एक्सो बड़े फेमस टर्म्स हैं ये, तो फुली आपको पता होंगे ये टर्म्स। अच्छा, इसमें ना ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हो, लाइक दिस वन, दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये आपका, ये वाला आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, ये वाला आपका एक्टिवेशन एनर्जी है। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी का जो एरो होगा ना, एक्टिवेशन एनर्जी का जो एरो होगा इज ऑलवेज अपवर्ड। एक्टिवेशन एनर्जी का जो एरो होगा ना इज ऑलवेज अपवर्ड, रिमेंबर। और एंडोथर्मिक का अगर मैं आपको दिखाऊं ना बेटा, यू कैन सी दिस। एंडोथर्मिक में एक्टिवेशन एनर्जी इज सो मच हायर, और एक्सोथर्मिक में एक्टिवेशन एनर्जी बिल्कुल चुन्नी सी छोटी सी होती है। Okay, reactant or product की position, you have to take care it. This is also an important thing. Okay, how to calculate the bond energy? How to calculate the how to calculate the bond energy? So the bond energy is reactant minus product. Reactant minus product. ये आपका reactant है H2 and Br2 and then HBr. H2 की भी एनर्जी दी हुई है, Br2 की भी एनर्जी दी हुई है, HBr की भी दी हुई है। तो बेसिकली ये इक्वेशन जो है ना वो कुछ ऐसी है, H2 प्लस Br2 एंड देन 2HBr। तो HBr को आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। बात समझ रहे हो आप लोग? HBr को आपने 2 से मल्टीप्लाई कराना है, तभी तो इन्होंने किया हुआ है 2 से मल्टीप्लाई। और बाकी रिएक्टेंट्स को ऐड कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, आपके पास आंसर आ जाएगा। So bond energy calculate करने के लिए nothing to do, just you have to calculate the bond energy of reactant side, then you have to calculate the bond energy of product side, then you have to subtract it, then you would be getting your final answer. That would be the bond energy. It's very simple. Sir, And after getting the um, answer, yeah, sir, sometimes in the bond energy, it's like it's given double bonds, but the energy given to you is like a triple bond. So what do you do for that? Like no, it's conversion of impossible. triple to Like double. when, like, no. I can Basically, give you a question. yeah, you can give me a question. Like, how is that possible? They are going to give us Wait, double let me bond show you. and something, maybe there is a printing mistake, of course it's not possible, it's not possible. जो है वो है, मतलब डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड है। आई नीड दैट एनर्जी। Sir, can you please recall it again? या असबिया, बेसिकली ये जो बॉन्ड एनर्जी है ना, बेसिकली द फॉर्मूला इज रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ओके, सो ये आपकी इक्वेशन है H2 प्लस Br2 और 2HBr। ओके, अब इसकी भी एनर्जी गिवन है और इसकी भी एनर्जी गिवन है और इसकी भी एनर्जी गिवन है। तो देखो ना, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने 366 को यहाँ पर, क्योंकि देखो ये मुझे इक्वेशन में दी हुई है, 2 इक्वेशन में दिया हुआ है।
और इन्होंने देखो यहाँ पर हमें H2 की एनर्जी भी दी हुई है, दैट इज ये, और Br2 की भी एनर्जी दी हुई है, दैट इज दिस। तो मैं यूज करूंगा ना इसको। इक्वेशन तो आपको पता है, इक्वेशन तो आपको ऑलरेडी गिवन होगी, इक्वेशन तो आपको ऑलरेडी गिवन होगी। आपको जस्ट क्या करना है, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करवाना है, जैसे कि यहाँ करवाया हुआ है। सिंपल, you would get your answer। बेबी कॉन्सेप्ट, सिंपल, नथिंग टू डू। तो आपको एनर्जीज दी हुई होती हैं, जस्ट आपने देखना है कि यार रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलें जी, फिर हमारे पास है अच्छा, इंपॉर्टेंस में से फ्यूल सेल भी इंपॉर्टेंट है। आई एम रिपीटिंग, सॉरी फ्यूल सेल नहीं, अपना इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और अभी तक जो मैंने आपको करवा दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्राफाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, ओके, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड मोल्टन, डाइल्यूट एक्वियस कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस, ओके, डाइल्यूट एक्वियस कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस, क्या नाम है फातिमा, आपको ये एनर्जी फाइंड आउट करनी है। आपने इस क्वेश्चन को समझा ही नहीं, ये क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है आपसे। सी द क्वेश्चन, सी द क्वेश्चन, दे हैव गिवन यू समथिंग एल्स। वो तो रिएक्टेंट साइड पर है, ही इज आस्किंग दिस। जिस पे आपने सर्कल बनाया है, यू हैव टू कैलकुलेट दिस Yeah, फातिमा, I didn't ओके। understand because it says double bond and that's given for triple bond. Okay, I'm going to share it on my iPad. Just wait. Just wait. It's a good question. Just wait. Okay, 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 okay. Yep, 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 yep. Mhm. Just wait for 1 minute. I'm going to share this question so that all can see that question. Mhm. बस सिर्फ वन मोर मिनट। थोड़ा सा टाइम लगता है ना यार इसको थोड़ा सा भेजने में। Yeah, it's coming now. Yeah, see this. हम्म। देखो भाई, ये फातिमा इस क्वेश्चन का कह रही है, और के शी इज सेइंग दैट in this question they are asking to calculate the bond energy for CO, for CO. How can we do this question? See this? How can we do this question? It's very easy. It's very, 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 very easy. Let me take another paper. Yeah, see this. I'm gonna do the question. Mhm. Okay, 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 okay. So delta H, that is minus 105, is equal to the reactant, that is CO, that is 1075, plus Cl2, that is 240. This is your reactant side, minus product। CCl के कितने bonds हैं? दो bonds हैं, 340 multiplied by 2,
plus this is I have to calculate. I would say this is x. So you have to separate x. Fatma, are you getting my point? Yes or no? Yes. हाँ बिल्कुल इजी क्वेश्चन है यार. दिस इज बेबी क्वेश्चन. बेबी क्वेश्चन. चलें जी, चलें आगे 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 आगे. देन वी हैव रेट ऑफ रिएक्शन एंड दिस इज वेरी इजी चैप्टर. ओके. रेट ऑफ रिएक्शन में Can you बेसिकली show आपको the पता होना page चाहिए. again? सॉरी. Can you show that page again in which you were solving? या ओके. Sir, you just minus it with enthalpy change, right? या एग्जैक्टली. So enthalpy change minus the value we have find. Yeah, exactly. Because you know, delta H is given to you in this question. They are asking to find out like C double bond. Oh, वैसे वैसे ज्यादातर पता है क्या होता है, डेल्टा एच आपको फाइंड आउट करना होता है, लेकिन इसमें डेल्टा एच इन्होंने दे के आपको कंफ्यूज कर दिया. बात समझ रहे? थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. बट जो भी हो यार, मतलब हमें तो फॉर्मूला पता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट. स्ट्रेट अवे आई वुड से दैट जस्ट यू हैव टू अप्लाई रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट. जो भी आपको फाइंड आउट करना हो उसको एक्स कह देना आप. दैट्स इट. ओके. मतलब कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास, तो हम इंशाल्लाह यू विल नॉट गेट कंफ्यूज. इंशाल्लाह. चलिए जी आगे चलें. ओके. चलें आगे चलते हैं. Okay. Rate of reaction means speed of reaction. How many factors we have? Temperature, pressure, catalyst, surface area. Temperature बढ़ाओगे, rate बढ़ेगा. Temperature is directly proportional to kinetic energy. When temperature increases, kinetic energy increases. Particles would be colliding with each other. So the rate of reaction increases. और अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा. द पार्टिकल्स वुड बी कमिंग close to each other. Frequent collision increases, so the rate of reaction increases. और अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे ना, you know what is surface area? Surface area means that इसको पाउडर बना दिया. पाउडर करके लेट सपोज आपने शुगर ली, शुगर में क्रश कर दिया, पाउडर बना दिया, आप उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे ना, यू नो it would take less time. It take less time, because the surface area has been increased, so the rate has been increased. सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है. ओके. अच्छा. इसी तरह से कैटलिस्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को. एंड इट प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिव पाथ. एंड व्हाट इन इट प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिव पाथ. कैटलिस्ट बेसिकली इसका मेन पर्पस ये होता है कि टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन. ओके. अच्छा, मैंने जो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं ना बेटा, ये कैटलिस्ट आपको याद होने चाहिए, वो अक्सर पूछता रहता है. मतलब स्पेशली this one and this one, especially most important, most important, most important. Okay. चलें जी, आते हैं हम रीडॉक्स पर. रीडॉक्स बेसिकली ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है. ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है. Oxidation means loss of electron and reduction means gain of electron. Oxidation means addition of oxygen, reduction means loss of oxygen. Oxidation means loss of hydrogen, reduction means gain of hydrogen. तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन हम जो है ना वो डिफरेंट वेज में बता सकते हैं. इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बता सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ आप प्रोटॉन भी बता सकते हैं, और दूसरा ये है कि ऑक्सीजन की टर्म्स में भी बात कर सकते हैं, हाइड्रोजन की टर्म्स में भी बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की टर्म में भी बात कर सकते हैं. ओके. दूसरा ये कि oxidizing agent and reducing agent. Of course, oxidizing agent is the one which oxidizes other and reduces itself. Oxidizes other and reduces itself. और reducing agent क्या होता है? जो reduces other and oxidizes itself. बात समझ आ रही है आपको? जैसे कि कोई भी रिएक्शन आपको दिया हुआ होगा, लेट्स सपोज दिस इज द रिएक्शन. अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि हु इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हु इज रिड्यूसिंग एजेंट. तो आप पता है कैसे कैसे करोगे? कॉपर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कॉपर +2 है. कैसे पता लगा मुझे? क्योंकि ये 2 है, ये इसका चार्ज है. तो 0 से +2 पे चला गया ना,
0 से +2 का मतलब क्या होता है? इट्स अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इट इज ऑक्सीडेशन, मतलब इट इज सिंपल ऑक्सीडेशन। और जो खुद ऑक्सीडाइज हो, और जो खुद ऑक्सीडाइज हो वो कौन होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो कॉपर इज रिड्यूसिंग एजेंट। Cl- है ना, या H+ है ना, यहाँ पर H0 है ना। सो +1 to 0 means this is reduced. Something which is getting reduced is an oxidizing agent. So HCl is an oxidizing एजेंट। ये चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, which one is oxidizing agent, which one is reducing agent, where is oxidation, where is reduction, these four things you need to know, these four things you need to know। ओके okay? अच्छा जी, फिर हम आते हैं किस पर? आइए जरा। अच्छा, हर रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। जैसे ये तीन रिएक्शन ऐसे हैं, ये तीन रिएक्शन ऐसे हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, जो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ओके, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, decomposition is not a redox reaction, precipitation is not a redox reaction। तो ये जो तीन रिएक्शन है, ये redox reaction नहीं है, याद रखना। ओके, विदाउट चेकिंग यू कैन से these are not redox reaction, these are not redox reaction। ओके, अच्छा अब हम आते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन पे। रिवर्सिबल रिएक्शन में इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डबल एरो। अब इसमें होता ये है कि मैं अगर आपको कहूं कि मेरे पास ये एक इक्वेशन है N2+3H2 और 2NH3, हेबर प्रोसेस है, बड़ा फेमस प्रोसेस है। अगर आपने नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज की तो फॉरवर्ड, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज की तो बैकवर्ड। यू नो इट चेंजेस फ्रॉम ऑलवेज हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। लेट्स सपोज आपके पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बैकवर्ड हो जाएगा। अगर आपने, आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, फिर प्रेशर की अगर तुम बात करोगे ना, तो प्रेशर की बात करने से पहले आप इक्वेशन के मोल्स देख लेना इस तरह से। बात समझ रहे हो आप लोग? मोल्स चेक कर लेना भाई, कि लेट सपोज ये है 4 मोल्स टोटल, 1 और 3, 3 + 1 4, और ये कितने? 2 है। ये कितने हैं? 2 है। ओके, तो अब होता इसमें ये है कि अगर आपने इसका प्रेशर बढ़ाया ना तो वो फॉरवर्ड हो जाएगा। क्यों? हायर टू लोअर, हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। ओके, अब अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास एक ये इक्वेशन है, आपके पास एक ये इक्वेशन है, ओके, तो पता है आप क्या करोगे अगर आपने प्रेशर बढ़ाया? नो चेंज, ये भी 2 मोल, ये भी 2 मोल, ये भी 2 मोल, ये भी 2 मोल, दोनों सेम सेम मोल है। दोनों क्या है? दोनों क्या है? दोनों 2 2 मोल है। तो इसका मतलब ये है कि नथिंग चेंज इन इक्विलिब्रियम, इट वुड रिमेन द सेम। आप इक्वेशन जरूर देख लीजिएगा कि वो कौन सी इक्वेशन है, क्योंकि ऑलवेज इट मूव्स फ्रॉम हायर टू द लोअर, हायर टू द लोअर। चाहे वो टेम्परेचर चेंज कर लो आप, चाहे प्रेशर चेंज कर लो, चाहे कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर लो। अच्छा, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता उसमें। ओके, मगर कैटलिस्ट ओनली इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्शन आपका फॉरवर्ड हो रहा है या बैकवर्ड हो रहा है, सो इट वुड रिमेन एट द सेम डायरेक्शन। कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं है इक्विलिब्रियम पर, याद रखिएगा मेरी बात। अच्छा, अब हम आते हैं एसिड बेस पर। एसिड की डेफिनेशन, बेस की डेफिनेशन, एसिड की डेफिनेशन, बेस की डेफिनेशन, एसिड की प्रॉपर्टीज, बेस की प्रॉपर्टीज, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज, बेस और एल्कली का डिफरेंस, बेस और एल्कली का डिफरेंस। बात समझ आ रही है? बेस क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर। एल्कली क्या है? सॉल्युबल इन वाटर। बात समझ रहे हो आप लोग? तो लेट्स सपोज ये कुछ रिएक्शंस हैं हमारे पास। अच्छा, एसिड की टाइप्स, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, व्हाट इज डाइल्यूट एसिड,
व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट इज वीक एसिड, तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या है? जिसमें लेस लेस वाटर हो मोर एसिड हो। डाइल्यूट एसिड क्या है? जिसमें मोर वाटर हो लेस एसिड हो। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? विच कंप्लीटली आयोनाइजेज। वीक एसिड क्या है? विच पार्शियली आयोनाइजेज। इतनी सी बात है। ओके, फिर आपको ना केमिकल रिएक्शंस आने चाहिए एसिड बेस के। लाइक एसिड रिएक्शन करता है बेस के साथ, इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बात समझ आ रही है? इसी तरह से एसिड कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करता है, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा होता है। ओके, अच्छा फिर इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपना कलर चेंज करता है इन एसिड और बेस। जैसे फिनोल्फथलीन है, वो एसिड में कलरलेस होता है, बेस में वो पिंक होता है। मिथाइल ऑरेंज है, एसिड में रेड होता है, बेस में येलो होता है। लिटमस पेपर है, एसिड में रेड होता है, बेस में ब्लू होता है। मिथाइल ऑरेंज है, रेड और ग्रीन। ब्रोमोथाइमॉल ब्लू है, येलो और ब्लू। मतलब समझ रहे हो आप लोग? तो ये याद होना चाहिए, अक्सर पूछता है, आपने देखा होगा पास पेपर में, आपने किए होंगे, ये पूछता है अक्सर इसमें। यस। सर इसमें हम कितने याद करें इंडिकेटर्स, मतलब पेपर में कितने आएंगे? देखो इसमें आप लोग ये नहीं करना, बाकी याद कर लो ये। ओके, ओके। ये मैं ग्रुप पे शेयर भी कर दूंगा फाइल, सही है? ये स्केल है जो आपको Phenolphthalein or thymophthalene different? हाँ, फिनोल्फथलीन इज समथिंग एल्स एंड थाइमोथैलीन इज समथिंग एल्स। थाइमोथैलीन भी इंडिकेटर है, थाइमोथैलीन भी इंडिकेटर है। ओके, यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होता है हमारे पास। सही है, तो इंडिकेटर्स की लिस्ट है हमारे पास। और इसी Okay. तरह से वो आपको बता देते हैं कि एसिड की प्रेजेंस क्या है और बेस की प्रेजेंस क्या है। और पीएच स्केल के थ्रू भी आप बता सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर ये वीक एसिड है। क्योंकि देखो 7 जो पीएच है ना वो न्यूट्रल है, 7 से जो नीचे है वो एसिडिक पीएच है और 7 से जो ऊपर है वो बेसिक पीएच है। फिर देखेंगे कि 7 से कितना करीब है। लेट सपोज कभी कभार ऐसा भी होता है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो 6 है, तो भाई 6 तो 7 के बिल्कुल करीब है ना, वो तो बिल्कुल ही वीक एसिड है। 7 से दूर हो, जितना दूर होगा उतना स्ट्रांग होगा। और बेस भी ऐसे ही है, बेस की पीएच जितनी 7 के करीब होगी उतना वीक बेस होगा, जितनी 7 से दूर होगी उतना वो स्ट्रांग बेस होगा। ओके, सेट है बात? आगे चलते हैं। अच्छा, आइए जरा फिर हम किस पर आते हैं। अम्म ये सारे रिएक्शंस मैंने लिखे हुए हैं, यू कैन गो थ्रू दिस, यू कैन गो थ्रू दिस द रिएक्शन। ओके, यू कैन गो थ्रू दिस। और ऑक्साइड की 4 टाइप्स हैं हमारे पास, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड कौन होते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड कौन होते हैं? मेटल ऑक्साइड। एम्फोटेरिक जिनमें डुअल नेचर होती है, ये कुछ ही होते हैं, ये 3 एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है। और न्यूट्रल ऑक्साइड में नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, जैसे कि H2O, CO और NO, फिक्स एग्जांपल्स हैं। सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस दफा, सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस दफा। ओके, सो जैसे कि अगर मैं आपको आपसे पूछूं सोडियम क्लोराइड कैसे बनाऊं, तो पहले देख तो लो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूबल है, क्योंकि पता है मैं क्यों कह रहा हूँ, सॉल्यूबल सॉल्ट को प्रिपेयर करने का मेथड अलग है और इनसॉल्यूबल सॉल्ट को प्रिपेयर करने का मेथड अलग है, याद रखिएगा। ये सॉल्युबिलिटी रूल्स हैं जो आपको लाजमी पता होने चाहिए। ऑल नाइट्रेट्स सॉल्युबल, all sulfates soluble except this one, all chlorides soluble except this one, potassium sodium ammonium salts all soluble। ये वाले सॉल्ट सारे soluble, सारे soluble, insoluble insoluble। बात समझ आ रही है आपको? सो लेट्स सपोज मेरे पास एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, मैं AgCl बनाना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना है ना, सो यू हैव टू टेक 2 soluble salts। लेट्स सपोज बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ H2SO4 with barium nitrate और with barium chloride, क्योंकि दोनों soluble है।
तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा। बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है, आप उसको फिल्टर कर देना। फिल्टर करने के बाद उसे आप वॉश कर लेना टू रिमूव इम्प्योरिटीज, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। वॉश कर लिया, अब आप उसे ड्राई कर लेना बिटवीन द शीट्स ऑफ फिल्टर पेपर, या उसे आप अवन में रख देना, दोनों उसमें वो ड्राई हो जाएगा। देन यू कैन यूज द सॉल्ट। इट्स वेरी सिंपल क्राइटेरिया। ओके, अच्छा आइए जरा अब हम सॉल्युबल सॉल्ट को बनाने के दो मेथड्स हैं, एक टाइट्रेशन मेथड है और एक एक्सेस बेस मेथड है। आई एम रिपीटिंग, सॉल्युबल सॉल्ट को बनाने के दो मेथड हैं, एक टाइट्रेशन मेथड है और एक एक्सेस बेस मेथड है। ओके, तो अब ये देखो टाइट्रेशन मेथड में हम क्या कर रहे होते हैं। टाइट्रेशन मेथड में हम करते ये हैं कि एसिड का रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ। इट्स वेरी सिंपल। मुझे सोडियम क्लोराइड बनाना है ना, तो मैं पता है क्या लूंगा, NaOH का रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ, HCl के साथ। तो टाइट्रेशन में हम क्या क्या चीजें लेते हैं, बी हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क होता है, ब्यूरेट होता है, कॉनिकल फ्लास्क होता है, ये रहा कॉनिकल फ्लास्क, ये रहा आपके पास ब्यूरेट। कॉनिकल फ्लास्क में आपने HCl डाला, ब्यूरेट में आपने NaOH डाला, फिर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर डाले आपने, और फिर आपने टाइट्रेशन की, आपको वॉल्यूम पता लग गया। देन रिपीट द टाइट्रेशन विदाउट इंडिकेटर, देन योर सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड। ओके, इसी तरह से आपके पास एक्सेस बेस मेथड भी होता है। तो ये तीनों मेथड्स देख के जाइएगा लाजमी, तीनों मेथड्स लाजमी देख के जाने हैं आपने, लाजमी लाजमी देख के जाने, इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा पीरियोडिक टेबल से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हेलोजन के रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद है ना आपको। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं, लेट्स सपोज मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन lithium and copper, lithium and copper, आप बोलोगे lithium is in group 1 so it is soft, it is soft, or copper is hard because it's the transition metal. Okay, it's the transition metal. Acha, copper is used as a catalyst but sodium cannot use as a catalyst, or lithium you can say. Yes Asbiya? सर सोल्यूबल जो मेथड है सॉल्ट का, उसमें हम सॉल्ट डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे या हेक्सेन से? हेक्सेन से। डिस्टिल वाटर से करोगी तो वो तो सॉल्युबल है, वो तो जाया हो जाएगा सारा। हाँ, ओके, सही है। ओके हाँ, अच्छा आपने क्या कहा, मैंने पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की प्रॉपर्टीज, ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टीज, ट्रेंड्स, एटॉमिक साइज बढ़ेगा कम होगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगी कम होगी, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा कम होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लाइक मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज बढ़ता है डाउन द ग्रुप, और नॉन मेटल का कम होता है। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट हैलोजेंस, हैलोजेंस की रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, हैलोजेंस की रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये कलर भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं पूछता है एग्जामिनर, यूं जा रहे हो ना तो रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। मैं पता है मैं इन रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ आपसे, जैसे कि फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, यस द रिएक्शन इज पॉसिबल, फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमीन, या रिएक्शन इज पॉसिबल, वेरी सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो अगर मोर रिएक्टिव हुआ तो वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन अगर आने वाला लेस रिएक्टिव हुआ, लेकिन अगर आने वाला लेस रिएक्टिव हुआ, लेकिन अगर आने वाला लेस रिएक्टिव हुआ तो हाँ, तो क्या होगा, वो डिस्प्लेस नहीं कर सकेगा, तो वो डिस्प्लेस नहीं कर सकेगा, याद रखिएगा। जैसे कि अगर ये रिएक्शन यूं होता ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो मेरे भाई नो रिएक्शन, ये लेस रिएक्टिव है, कैसे डिस्प्लेस करेगा इसको, नहीं करेगा डिस्प्लेस इसको। ओके, सो आप बोलोगे नो रिएक्शन, लेकिन अभी तो हो रहा है ना रिएक्शन, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव ना, सो दीज रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट टू नो। ओके, मेटल्स की अगर मैं बात करूं, मेटल वाला चैप्टर भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। मेटल की प्रॉपर्टीज, डक्टाइल, मैलिएबल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, शाइनी, सोनोरस, और मतलब ईच एंड एवरीथिंग। एलॉय क्या है, मिक्सचर ऑफ मेटल है। एलॉय की कॉम्पोजिशन, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, अच्छा फिर आइए आप रिएक्टिविटी सीरीज पर। देखो मेटल के जो रिएक्शन है ना, ये वाटर से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं।
अब ये मैग्नीशियम, जिंक और आयरन है, ये रिएक्ट करेंगे तो ये ऑक्साइड बनाएंगे। आप ये मोटी मोटी चीजें नोट कर रहे हो, ये तीन कर रहे हैं तो हाइड्रोक्साइड बन रहा है, और ये तीन कर रहे हैं तो ऑक्साइड बन रहा है। देखो गलत नहीं करके आ जाना बेटा, मिक्स नहीं कर देना इनको, मिक्स मत कर दीजिएगा, याद रखिएगा मेरी बात ये। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी से, कि ये तीन करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, और जब ये तीन करेंगे तो ऑक्साइड बनेगा। डिफरेंस है दोनों में। ओके, चलें आगे चलते हैं। ये HCl से भी रिएक्शन करते हैं, क्लोराइड बनता है मेटल का। भाई मेटल में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ऐसी बात नहीं है सिर्फ हैलोजन में ही होता है। मेटल भी एक मोर रिएक्टिव है, एक लेस रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो, खाला, नसीमा, का, मंगेतर, अली, जैन, पप्पू हैदराबाद से कॉपर और सिल्वर लाया। तो मतलब मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये देखो इसने डिस्प्लेस कर दिया। यही रिएक्शन अगर यूं होता, हाँ, नो रिएक्शन, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस दिस मैग्नीशियम, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, ऑब्वियसली कॉपर इज लेस रिएक्टिव। ओके, कॉपर इज लेस रिएक्टिव। इसी तरह से कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कार्बन से भी सेपरेट हो जाते हैं। पता है वो कौन से होते हैं? जो कार्बन से नीचे होते हैं। यू कैन सी द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। तो कार्बन ने इस मेटल को अलग कर दिया, देख रहे हो आप लोग, कार्बन ऑक्सीजन को ले गया, कार्बन ऑक्सीजन को अपने साथ ले गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। ये देखो आपका मेटल अलग हो गया। इट्स वेरी सिंपल। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनको हाइड्रोजन भी अलग कर सकता है, तो हाइड्रोजन से नीचे होंगे ये मेटल। ऑब्वियस सी बात है ना यार, ऊपर होगा तो वो तो मोर रिएक्टिव होगा, कैसे उसको डिस्प्लेस करेगा? ये वाला जो मेटल है ना, ये हाइड्रोजन से भी नीचे है, बताएं आपको। बात समझ रहे हो आपको? बात समझ रहे हो? इसलिए हाइड्रोजन ने इसको क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया। हैदराबाद से कॉपर और सिल्वर लाया, बात समझ रहे हो? पप्पू पप्पू पप्पू, तो डिस्प्लेस हो गया ये उससे। So the lower position of metal in reactivity series, the easier hydrogen remove oxygen from metal oxide by heating. Okay, तो ये इसने इसको ले गया और मेटल को अलग कर दिया। देख रहे हो आप लोग, सिंपल है। तो मेटल वाला चैप्टर में कंटेंट बहुत ज्यादा है, ये आप लोग लाजमी देख लीजिएगा। इसकी प्रॉपर्टीज हैं, फिर एलॉयज हैं, फिर रिएक्टिविटी सीरीज है, फिर वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। ओके, फिर हमारे पास है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स एलिमेंट्स या वो कंपाउंड्स दैट मेक अप रॉक्स। और ओर क्या होता है? रॉक कंटेनिंग मेटल। अब मुझे एक्सट्रैक्शन यहाँ पे दो करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन है और एक एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम है। ओके, ये सब और लिखे हुए। मैं सबसे पहले करूंगा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। मैं सबसे पहले क्या करूंगा? एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। जैसे कि ये ब्लास्ट फर्नेस आपके सामने बना हुआ है, इसमें हमने तीन चीजें डाली, एक कोक, सैंड, ना सॉरी, हेमाटाइट Fe2O3 और कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम पता है मिला के क्या कहते हैं? चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज। चार्ज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोक, आयरन ऑक्साइड एंड दिस इज द लाइमस्टोन, लाइम। कार्बन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड बना। फिर कार्बन डाइऑक्साइड ने कार्बन के साथ रिएक्ट किया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ने रिएक्ट किया Fe2O3 से, तो आयरन को अलग कर दिया, CO2 बन गया। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट था, ये ब्रेक डाउन होके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनेगा। सिंस कैल्शियम ऑक्साइड इज अ बेसिक ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड उसमें एक इम्प्यूरिटी होती है सिलिका, दैट इज एन एसिडिक इम्प्यूरिटी। तो वो उसके साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाता है, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम सिलिकेट। नॉर्मली इसे कहते हैं स्लैग। लिक्विड फॉर्म में होता है, हम उसको टैप ऑफ कर लेते हैं नीचे से। क्योंकि अक्सर होता है ना कि सर आपने कैल्शियम कार्बोनेट क्यों डाला था इसमें, यहाँ पे तो अभी तक नजर नहीं आया। कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अस कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है फिर किसके साथ? आयरन ऑक्साइड, उसके साथ सिलिका के साथ, जो कि इम्प्योरिटी है, तो वो कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। कॉमनली हम इसे कहते हैं स्लैग, और आपकी इम्प्योरिटी वहां से रिमूव हो जाती है। ओके, अच्छा जी। रस्टिंग बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रस्टिंग की प्रिवेंशन कैसे होती है, कितनी तरह की रस्टिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं? एक सरफेस प्रोटेक्शन है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन है। सरफेस प्रोटेक्शन में आप पेंट कर दो, ग्रीस लगा दो, ऑयल लगा दो, प्लास्टिक लगा दो, कोई भी प्लेट लगा दो उस पर, ताकि वो उस पर डायरेक्ट जो है वो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट ना हो।
डायरेक्ट इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट ना हो उस पर। बात समझ आ रही है मेरी? अच्छा, जो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन है ना, उसमें हम पता है क्या करते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल को अप्लाई कर देते हैं। जैसे बड़े बड़े शिप्स होते हैं ना, उनकी नीचे हम जिंक मेटल लगा देते हैं या मैग्नीशियम, दैट आर मोर रिएक्टिव देन आयरन। बात समझ रहे हो? तो वो आएगा जिंक से कांटेक्ट होगा उसका, क्योंकि दैट इज द मोर रिएक्टिव। इसको कहते हैं सेक्रीफाइस कर दिया इस मेटल ने अपने आप को इस आयरन के लिए, दैट इज कॉल्ड इट सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। तो आपको जहन में मैं टॉपिक्स लेके आता जा रहा हूँ, आप भूल ना जाओ कि यार ये टॉपिक्स आपने लाजमी देखकर जाना है, आपका माइंडसेट बनता जा रहा है। There was एटमॉस a question. क्या सी? There, यस there प्लीज। was a question related to sacrificial protection, that why we use zinc instead of magnesium. बेटा देखो, अब इतना भी ना हो, मैग्नीशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव वन। वो आपके वाटर से ये इतना रिएक्टिव हो कि वो एक्सप्लोजन हो जाए। मतलब हाउ ये व्हाट इज दिस, लाइक हाउ इज दिस प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन तो वो है कि वो रस्ट भी ना होने दे और खुद भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव ना हो। बात समझ आ रही है? सो जिंक इज समहाउ लाइक इट इज लाइंग बिटवीन, इन बिटवीन दिस एंड दैट। तो मैग्नीशियम फिर बहुत ओवर हो जाएगा वो। ओके, बहुत ज्यादा भी नहीं लेते, बहुत कम भी नहीं लेते, तो मतलब जिंक इज द बेस्ट वन, दैट्स व्हाई। ओके, अच्छा, ये एयर एंड वाटर से ये फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को फाइंड आउट करता है, ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 20%। तो आने के चांसेस हैं इसके, आने के चांसेस हैं इसके। ओके, बाकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर सिलेबस में नहीं है, निकल चुका है वो अब। ओके, अच्छा, फिर हम आते हैं, ये जो पॉल्यूटेंट्स है ना आपके पास, पॉल्यूटेंट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। like carbon monoxide, where it comes from, exhaust fumes, like vehicular emission, what hazard is it brings। देखो, ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है और ब्लड सर्कुलेशन को स्टॉप करता है, सडन डेथ होती है। कैसे रोकूं इसको मैं? कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करो। सल्फर डाइऑक्साइड कहां से आ रहा है? वोल्केनिक इरप्शन। क्या करता है ये? आई इरिटेंट होता है, एसिड रेन करता है। कैसे रोकूं? प्रिवेंट यूजिंग फ्यूल्स कंटेनिंग सल्फर इम्प्यूरिटीज। आप फ्यूल अच्छा यूज कर लो, आप फ्यूल अच्छा यूज कर लो, उसमें सल्फर होगा ही नहीं। जब सल्फर नहीं होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, सिंपल है। NO एंड NO2 ये भी आपके क्या है? पॉल्यूटेंट्स हैं। वेयर इट कम्स फ्रॉम, इंटरनल कंबशन इंजन है, लाइटनिंग एक्टिविटी है। क्या करूं भाई? लंग डैमेज होते हैं इससे, एसिड रेन होता है। क्या करूं? कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करो गाड़ियों में। बात समझ आ रही है आपको? ये एसिड रेन की पूरी प्रॉपर डिटेल है, क्या है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं इसके। तो एवरीथिंग, दिस इज मीथेन विच इज अ ग्रीन हाउस गैस। गर्मी होती है इस गैस से। ओके, ग्लोबल वार्मिंग होती है इससे। क्या करें, खत्म कैसे करें, किस तरह से आई है ये, अपनी एक्टिविटीज को कैसे रोकें हम। तो ये सारा यहाँ पे उसकी डिटेल लिखी हुई है। ओके, डिप्लीशन ऑफ ओजोन है, वो कैसे होता है? CFC से होता है। CFC क्लोरीन रेडिकल रिलीज करता है, फिर वो क्लोरीन रेडिकल बड़ा खतरनाक रेडिकल है, वो जाके ओजोन पे अटैक करता है, उसको O2 बना देता है। तो ये सारा काम किसने किया? जब आपके पास रेडिकल फॉर्म हो गया। रेडिकल कैसे फॉर्म हुआ? जाहिर सी बात है, सनलाइट आके पड़ी होंगी उस पर, सनरेज आके पड़ी होंगी। तो ये एक चेन रिएक्शन है जो कि स्टार्ट हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की आपको लाजमी थोड़ी सी डिटेल पता होनी चाहिए इसमें। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। कार्बन साइकिल इज नॉट इन आवर सिलेबस राइट नाउ। ओके, तो बेटा ये छोटी छोटी चीजें हैं। वाटर का है, फिर वाटर का टेस्ट है, वाटर की प्यूरिफिकेशन है। वाटर के दो टेस्ट होते हैं, वाटर की प्यूरिफिकेशन होती है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, आपको सारे फंक्शनल ग्रुप्स पता होने चाहिए, सब सब, एल्केन, एल्कीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल्स, एस्टर, एमाइन, अमाइड, हैलोजिनो एल्केन, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूं कि यार हमारे पास, मैंने आपको वो बता दिया है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, आपको दोबारा नहीं बता रहा। एल्केन की डिटेल क्या है, एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। हाइड्रोजनेशन है, एल्केन की क्रैकिंग करवा रहे होते हैं हम। इसी तरह से एल्केन एडिशन रिएक्शन नहीं करता, वो करता है, क्या नाम है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या प्रोडक्ट्स होती हैं? 3 रिएक्शन मैंने तुम्हें एल्केन के बता दिए, एक कंबस्शन, एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यानी कि फोटो से, यानी कि सॉरी, अपना फोटोकेमिकल रिएक्शन, और द थर्ड वन इज क्रैकिंग। एल्कीन में रिएक्शन थोड़े से ज्यादा हैं। एल्कीन में रिएक्शन देख रहे हो आप लोग, एडिशन रिएक्शन है एल्कीन में, जैसे कि ये हाइड्रोजनेशन है, ये ब्रोमिनेशन है, ये हाइड्रेशन है। इसी तरह से आपके पास डिहाइड्रेशन भी होता है, पता है आपको? एल्केन से एल्कीन में चला जाता है डिहाइड्रेशन में, अल्कोहल से एल्कीन में, उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं हम।
तो मतलब ये रिएक्शन में अभी आपको सारे नहीं बता सकता. आई वुड बी सेंडिंग यू द फाइल. प्लीज गो थ्रू दिस. Please go through this and see all the reactions. And if you are having any difficulty, please do let me know. I would be telling you this, okay? Inshallah. Alcohol में कौन कौन से reactions होते हैं, combustion क्या है, dehydration क्या है, मतलब कि उसमें फिर आपके पास ईच एंड एवरी जो भी रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, पॉलीमराइजेशन में दो तरह के हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन या प्लीज. Is it a must we know the equation for photosynthesis? Photosynthesis, no, but you must know the equation for the fermentation that is included in your alcohols, okay? Like glucose is going to convert into the ethanol and the carbon dioxide in the presence of yeast, in the presence of anaerobic condition, and the temperature should be in between 30 and 40 degrees Celsius because we are using yeast. That is the biological catalyst. It's a microorganism, living organism. It would die if you are going to increase the temperature. He would be asking these kind of questions, remember, okay? Or let me tell you the important things. I would be writing it down and sending it to you. Number one, electrolysis of sodium chloride molten, concentrated, dilute aqueous, redox reactions, diamond, graphite, properties of covalent compounds, alcohols, carboxylic acid, addition, polymers, proteins, especially proteins. I'm going to tell you this, especially proteins. Okay. And like strong acid, weak acid, concentrated acid, dilute acid. So these things only first you have to do, I think so. I'm going to send it to you as well. But मैंने आपको एक थोड़ा सा overview दे दिया कि आपका mindset बन जाए, because you know we have very short of time. Tomorrow is your paper. If you are thinking a lot of things, oh my God, what I have to do right now, or what I'm supposed to do because I cannot do anything. I haven't like studied before like this that I am studying right now like today. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. आप सिर्फ specific topics सीख लो and just go for the paper, and then inshallah all the things would go better. I'm going to send it to you as well, but this is the last one topic, that is addition polymer. Only double bond to single bond, double bond, single bond, double bond से single bond, double bond से single bond. That's it. कोई मुश्किल नहीं है इसमें. हाँ, condensation polymer में let's suppose I have to form nylon. किस किस का रिएक्शन कराऊं, मुझे क्या पता, आपको क्या पता. Examiner is going to tell you this one and this one, and then you have to combine this. Water molecule would be released, they would be joining together, है ना? The same goes for this is the nylon polymer. This is the nylon polymer. In this you can see amide linkage, amide linkage, and then you have terylene, टेरिलीन, एस्टर लिंकेज. जब टर आएगा ना तो टर लिंकेज होगी. बात समझ रहे हो? नाइलॉन आएगा तो नल एम नाइलॉन एमाइड. फीलिंग आ रही है नाइट्रोजन की, एमाइड. मतलब समझ रहे हो? नाइलॉन कहाँ और एस्टर लिंकेज कहाँ? डजंट मेक सेंस यार. नाइलॉन नाइलॉन एमाइड लिंकेज, टर लिंकेज, एस्टर लिंकेज. याद होना चाहिए आपको, पूछेगा वो आपसे. But trust me, he would ask. That's the important thing that you need to know, okay? Ester में ter linkage. So अगर आप इसका और इसका reaction कराओगे, तो that would be forming ester ter linkage, just like that, okay? तो this is the protein. Protein आप ऐसे बनाओगे. This is your protein. आप ये देख सकते हो यहाँ पर. फिर भी बेटा, फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ, if you are having any difficulty, please you can feel free to text me. I would be answering your each and every single question. Okay, so बाकी जो चीजें हैं आपके पास, ये कलर्स वगैरह हैं, ये टेस्ट हैं. Examiner would not give you this one. He would be only giving you when you would be doing your ATP. Tomorrow there he would not be giving you this. You have to memorize. Especially पता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट याद करो, ऑक्सीजन गैस का टेस्ट याद करो, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट याद करो. ओके, फ्लेम टेस्ट याद करके जाना. सोडियम इज गोइंग टू गिव यू येलो कलर. इसी तरह से सेम गोज विद पोटेशियम, सेम गोज विद कैल्शियम, सेम गोज फॉर मैग्नीशियम. या सम पूछो बेटा, क्या पूछ रहे हो? हु इज दिस? अज़बिया सर बोलो. वो केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग थोड़े एक दो एग्जांपल बता दें बैलेंसिंग, करके. ओके.
ओके, देख लो देख लो देख लो, अभी बता देता हूं मैं. दिस इज द हेबर प्रोसेस. This is the Haber process. Just wait, I'm going to give you your answer. This is the Haber process. How many nitrogens we have? Two. I'm supposed to write two over there. Now how many hydrogens we have? Yes? Yeah? पूछो बेटा. Is electrolysis a key topic as well? Electrolysis. Yeah, I told you. Molten, dilute aqueous, concentrated aqueous. Fatma, yes, bolo Fatma. I sent you a question. Can you see that about the polymers? Yeah, okay. So Asbia 2 3s are 6 हाइड्रोजन हैं यहाँ पर 3 लगा दो, बैलेंस हो गई इक्वेशन. तो हमारे पास रूल्स हैं. पहले आप मेटल्स को बैलेंस करो, फिर आप नॉन मेटल्स को बैलेंस करो, फिर आप ऑक्सीजन को बैलेंस करो, फिर आप हाइड्रोजन को. यू कैन राइट इट डाउन एज वेल. फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस द मेटल्स, देन बैलेंस द नॉन मेटल्स, देन बैलेंस ऑक्सीजन, देन बैलेंस हाइड्रोजन. प्लीज राइट इट डाउन. बैलेंस मेटल्स, बैलेंस नॉन मेटल्स, बैलेंस ऑक्सीजन, बैलेंस हाइड्रोजन. 4 steps only. Only 4 steps. Sir, can you repeat it one more time? Balance metals, balance non-metals, balance oxygen, balance hydrogen. Thank you. Okay. Fatma. What is this, Fatma? Okay, Fatma, I would be telling you this one. Okay. Yes, और भी कोई कुछ पूछ रहा है बेटा? Yeah. Yeah. Can you show us Sir, how I to just had calculate? Can you show what? Can you show us how to calculate oxidation number one more time? Yeah. Okay. Yes, Aisha. Sir, I just have one question. Like, how do we keep track of the time while doing the paper? Yeah, okay, wait. I'm going to tell you how to calculate the oxidation number. KMNO4. I have to calculate Mn. I know K is +1. I want to find out Mn. This is X. 4 oxygen. Oxygen is -2 is equal to 0. Okay. Then +1 plus x, 4 into 2 is 8 is equal to 0, plus 1 minus 8 minus 7 is equal to 0. So x is equal to +7. X is equal to +7. So isme basically when you are going to find out the oxidation number of any element, you must know the other one. You must know the other one. Okay. You must know the other one. Okay, like in the case of KMnO4, you know the oxidation number of K, that is +1. You know the oxidation number of O, that is -2, and then you have to find out the value for Mn. Are you getting my point? Yeah. Yes or no? Yeah. Okay. Acha, how can we manage the time? That's the good question. Beta, I would recommend you all to please do that questions that you can do easily. Do not panic कि ये मुझे नहीं आ रहा है. Just leave the question. You are not supposed to waste your time. आप बैठ के सोच रहे हो, ओ कैसे करूं, अबे यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं था. ओए भाई, just leave man. This is Cambridge. This is not like मैट्रिक और कोई FSC नहीं है. यहाँ पर आपको थ्रेशोल्ड मिलेगा. थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है कि अगर 80 मार्क्स का पेपर है आपका, 80 मार्क्स का अगर आपका पेपर है, so he would be giving you a static at 65 only. Enjoy the party. He doesn't need the 80 marks. तो भाई अगर एक दो गलत हो भी जाए, छोड़ो यार, आगे निकलो यार. Forget the past man, see your future. आप बैठे हुए उस सवाल को मैंने देखा है. I saw in my duty. I have a duty in exam. बच्चे बैठे हैं लेके, अबे यार तुम आगे चलो ना. सर मोल नहीं समझ आ रहा. अबे तुम भाई जो आ रहा है वो तो करो. डेफिनेशंस कर लो, ऑर्गेनिक सॉल्व कर लो, जो चीजें याद करने की हैं. प्रॉपर्टी पूछ रहा है मेटल की, वो तो लिख लो. ओके, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. ही हैज गिवन यू द डायग्राम एंड यू हैव टू लेबल इट. वो कर लो. सो there is only one way to manage your time is to leave that questions in which you are lagging. बेटा वो सबसे आखिर में जाके देखना. सबसे मजे में चिल होके बिल्कुल जब सब कुछ तुम्हारा हो जाए ना, इजी चीजें, फिर उनको देखो. then you will see that कि आपका पेपर पूरा हो जाएगा, फिर भी टाइम बचा हुआ होगा. Remember, I am saying it to you today, okay, कि
just leave that questions in that question that you are going to think, okay, what I have to do. Just leave it. First of all, you have to do that questions that are very easy for you. Just see the question and start writing. और जब आपके पास टाइम बच जाएगा, and remember बचेगा टाइम, trust me, टाइम बचेगा, फिर वो बाद में कर लेना। जय सूर्या बोलो बेटा। Sir, will you be taking classes after tomorrow exam? Yes, why not? पेपर 1 अभी मतलब MCQ आपका रहता है, ATP रहता है उरिया। Okay जी, Okay, sir. so thank you so much, okay, for your time. So if you are having any queries, so then do let me know. I would be telling all the answers. Thank you. Okay जी, अस्सलाम वालेकुम।